Assalamu alaikum. Welcome to our 13th workshop, which is decision trees, our second last workshop of supervised learning, or you can say a second last workshop of classification, maybe, as far as I know. So maybe by tomorrow, after tomorrow, the day after tomorrow, or pretty soon, we're gonna jump to unsupervised learning, or in a short form, you can say, or an alternate name क्लस्टरिंग अभी हम सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं लाइक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन होती है बट व्हेन विल स्विच टू अनसुपरवाइज लर्निंग देन वी गोना हैव सेम थिंग क्लस्टरिंग जो कि एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है एंड वील सी दैट अनसुपरवाइज लर्निंग इज द मेजर कोर ऑफ डीप लर्निंग it used especially in autoencoders and GANs, which has invented so many things in vast majority of disciplines. So that duration will also be going to be very exciting for us. All right, so let's switch to my notebook. Okay, we won't just spend time in talking today because we spend too much time in talking on daily basis. Okay, let me share it. All right, so my notebook has been shared to you guys, and let me share my GitHub URL for the code to you guys too. Okay, it's already been copied, so no problem for me. Let me share it. Let me make an announcement. All right, so meanwhile, I usually start workshop 2 minutes late because there are so many punctual students because to whom I love a lot. And I'm seeing those students who are coming very on time, but there are so many students who are always coming after 15 to 20 minutes. Okay, let me make sure that it's sent or not. All right. Okay. So someone has also asked about Ayan has also asked about Genie Imperi. Okay, I'm gonna explain that too today. All right. So let's switch to our notebook without wasting any another second minute or a second. So what is decision tree classification? As we already know that we have performed in regression, the decision tree classification we can simply or frankly say it as if-else generator. What do we mean by if-else generator? Because for example, we are having two classes, class A and class B, but they are not very simple in you can say अगर मैं यहाँ पे मैं एक स्लाइड थी जो कि हम दोबारा खोल लेते हैं वो रिग्रेशन के लिए थी बट वी गोना ओपन द सेम थिंग फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल तो अगर आप यहाँ पर आए सो इन 8th वर्कशॉप वी गोना हैव सेम स्लाइड्स so we'll have some basic intuition again for tree based regression or you can say tree based classification in machine learning. Both are the same thing. We just let me give an overview of this. How can we download this file? Is there any way? There should be any way. All right, there is not a single way download this single file. All right, so let's continue like this. So this is a decision tree and why we use it. All right, so we actually just open a Python file. That's why it's not showing me download option. Okay, so now it's showing me download option. Just a second, guys, and let me open it. All right, so for example, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग दिस सॉल्व डाटा इन लीनियर डाटा तो इसको क्लासीफाई करना बहुत आसान होता है बिकॉज इन दिस वी कैन इम्प्लीमेंट लीनियर रिग्रेशन और हम क्लासिफिकेशन की अंदर बात करें तो इफ़ यू आर हैविंग टू क्लासेस विच कैन बी फिट बाय सपोर्ट वेक्टर मशीन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो उसको फिट करना तो बहुत आसान होता है बट वट इफ़ यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ फीचर्स लाइक दिस
For example, assume that these are not linear regression. Oh, sorry, this is not a regression problem. This is just like a classification problem. और अगर ये एक क्लास अलग आ रही है, like this is another class, this is another class, this is class A, for instance, this is class B, for instance, this is class C, for instance, and this is class D, for instance. So अगर हमें इन चारों classes को individually divide करना हो, so a single hyperplane cannot divide a two class or more than three class. Even naive base cannot handle this type of scenario when we are having this sort of conditions. तो यहाँ पर फिर हम लोग decent trees implement कर रहे होते हैं. Decent trees often has a very low accuracy rate as compared to random forest, because in recent tree we are having one decision tree, but random forest is basically the collection or an ensemble of multiple trees in it. तो random forest की usually इसलिए accuracy ज़्यादा होती है जब हम multiple data set use कर रहे होते हैं, sorry multiple features use कर रहे होते हैं. So as we can see here, एक hyperplane suit नहीं हो सकता है इस type के data को. That is why for this we use decision tree. And now what is decision tree or what is tree classification tree, you can say. Random forest भी बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल होता है. आगे की सारी चीज़ regression के मुतालिक है. So we're gonna directly switch to our notebook. तो यहाँ पे अगर हम देखें, so we are having this like a root node. हमारे पास एक वैल्यू आ रही है like we are giving a feature कि मेरे पास my blood pressure is 100 beats per minute, and दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक अपर लेवल इंटर लेवल, एक आर्टरियल होता है, एक वेनल होता है. सो फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 120 and 80 ratios of my blood pressure and my heart beat is 100 beats per minute. तो ये मैं दे रहा हूँ वैल्यूज. अभी उसकी बिना पे प्रिडिक्ट करके बताएगा कि भाई मेरी हेल्थ कंडीशन सही है या नहीं है. जस्ट एन एग्जांपल ले रहे हैं. अब बहुत सारा ऐसा भी होता है भाई, किसी की एज पे अलग तरह का सिनेरियो चलता है, किसी एज पे अलग तरह का सिनेरियो चलता है. लाइक अब एक बच्चा है who is just a 5 years old kid, उसकी ब्लड प्रेशर हमसे ज़्यादा थोड़ा सा हाई होगा and he is going to have a high rate of beats per minute as well when we say about heartbeats. Same will go for the kid, a very newborn baby. न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर भी हाई होता है. यूजुअली आप जो उसका फीवर रेट होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर, हम जैसे नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता, उसका फीवर रेट भी हाई होता है. एंड ही इज हैविंग आल्सो द हाई रेट ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई रेट ऑफ बीट्स पर मिनट एज वेल. तो अभी क्यों होता है, क्या होता है, दैट्स अ मेडिकल सिनेरियो, बट इट डज हैपन इन द वेरी स्मॉल एज. और जैसे जैसे हम बड़े चले जाते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर गेटिंग वेरी ओल्ड और आफ्टर द एज ऑफ 40s and 50s, normal beats per minute are usually 60 to 70 per minute. जो हमारी हार्ट बीट होती है, और ब्लड प्रेशर भी हमारा 170 चल रहा होता है. इसी तरीके से डायबिटीज़ भी होती है. कुछ डायबिटीज़ का खैर अलग सिनेरियो होता है. डायबिटीज़ का सिनेरियो कुछ यूँ होता है कि फास्टिंग में डायबिटीज़ अलग आनी चाहिए, और अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया तो उसका डायबिटीज़ अलग आनी चाहिए, उसका अलग थ्रेशोल्ड है. सो वी आर हैविंग मल्टीपल थ्रेशोल्ड फॉर मल्टीपल सिनेरियोज. तो मल्टीपल सिनेरियोज मुताबिक हमारे पास जब थ्रेशोल्ड आ जाते हैं तो उसके मुताबिक हमें फिर इफ एल्स करना पड़ता है कि अगर भाई ये सिनेरियो, तो फिर ये वाला लीनियर रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई कर दो. अगर ये फॉर एग्जांपल ये वाला क्लासिफिकेशन मॉडल लगा दो, अगर आपकी एज इससे इसके दरमियान है तो ये वाला क्लासिफिकेशन मॉडल लगा कर दो. अगर हम ये करना चाहें हम ये भी कर सकते हैं, बट डिसीजन ट्री डज दिस बाय इटसेल्फ. वो क्या करता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने इनपुट लिया, आपने वैल्यूज दी, वो पहले चेक करेगा आपकी एज कितनी है. फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं दैट माय एज इज 12 years old. आई एम गिविंग इट एंड एंटर इट इनटू माय कंप्यूटर. सो इट गोइंग टू क्लासिफाई माय रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट एज. वो 12 एज वाली सिनेरियो में चला जाएगा एंड देन इट गोना कंपेयर टू द एक्चुअल रिजल्ट्स, जो ट्रेंड रिजल्ट्स होंगे कि भाई कि मुझे आया कि मुझे हार्ट डिजीज है या नहीं है. सो इट्स सेम लाइक इफ एल्स जनरेटर, बिकॉज बट लेकिन अगर आप यहाँ पे इफ एल्स जनरेट करने जाएं, सो बाय योर सेल्फ यू हैव टू कोड इट फॉर मोर देन 10,000 लाइन्स ऑफ कोड, अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा वास्ट मेजॉरिटी में है. और जनरलाइज सोल्यूशन कभी भी आपके हार्ड कोडिंग के ऊपर नहीं बन सकता. देयर इज वेयर अ डिसीजन ट्री कम्स, जो कि खुद से इफ एल्स जनरेट करता है, वेयर अ सिंगल इक्वेशन कैन नॉट वर्क. अब सिंगल इक्वेशन क्यों नहीं वर्क कर सकती, बिकॉज एज आई टोल्ड यू क्या डिफरेंट एज पे प्रॉब्लम जनरेट हो रही है. तो वहाँ पे और डिफरेंट एज पे डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है.
So where if we are using the equation thing in that those kind of scenarios, तो वहाँ पे जाके अक्सर औकात मशीन लर्निंग कंफ्यूज हो जाता है और सही से क्लासीफाई नहीं कर पाता. So then we use tree based classification in those scenarios जिसमें हमारे पास एक decision tree है और एक random forest है. रैंडम फॉरेस्ट हमारे पास जो है वो एक बहुत अच्छा मॉडल होता है और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है. लेकिन अगर हमारे पास डाटा कम हो तो डिसीजन ट्री भी चल जाता है. बट यूजुअली वी हैव सीन दैट रैंडम फॉरेस्ट जो है अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. But if you are having data like 50 data points, 100 data points, तो इन सिनेरियो में हम random forest कभी भी यूज़ नहीं करते because in that scenario we have a huge chance कि हमारा मॉडल जो है overfit हो जाए because it makes multiple trees for the same small amount of chunk of data while decision tree is perfect for those kind of data. आज हमारा data set बड़ा है तो यूजुअली ऑफ कोर्स ये बात है कि decision tree के अंदर इतनी खास एक्यूरेसी नहीं आने वाली, लेकिन जब हम इसको रैंडम फॉरेस्ट में अगर अप्लाई करें आप तो उसमें बहुत अच्छी हमारी एक्यूरेसी आएगी जो कि हमारी रैंडम फॉरेस्ट कल है. ऑलराइट, सो कल रैंडम फॉरेस्ट के साथ मैंने अलग करने की वजह ये थी, मैं इसको एक दिन में भी कर सकता था डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन को, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन को, बट रीजन ऑफ डिवाइडिंग दीज टू सेम टाइप क्लासिफिकेशन इन 2 days इज कि आज सिंपल रखा है, डेटा सेट डिफरेंट किए और कल कुछ नया लेकर आऊँगा, मे बी सम मोर एडवांस थिंग्स, मे बी सम अल्लाह हाफिज़ कहते कहते क्लासिफिकेशन को हम कुछ बड़ा करते हुए ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह. ऑलराइट, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट कि डिसीजन ट्री क्या है और किस तरह काम करता है. यू डोंट नीड टू रीड दिस थ्योरी. सो अगर हम बात करें तो व्हाट वुड द एप्लीकेशन ऑफ डिसीजन ट्रीज इन रियल लाइफ, तो करंटली तो इतना खास अभी नहीं चल रहा, बट इन पार्शियल ईयर्स और यू कैन से इन पास्ट ईयर्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता रहा है. इट्स माई रियल रिसर्च ऑन दिस, आई हैव सीन इन ऑन द इंटरनेट एज वेल. फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब आपके पास आ रही होती है तो यू हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ कस्टमर. In India, we are going to have different types of customer. In Pakistan, we are going to have different types of customer. Example कुछ यूँ ले लेते हैं that if you are having uh, iPhones and if you are having Samsung phones and if you are having another brand, you can say like Huawei phones. तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर हम पर डेंसिटी टू पॉपुलेशन रेशियो निकालें, सैमसंग के फ़ोन सबसे ज़्यादा इंडिया में सेल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बट हुआवे और एप्पल के फ़ोन्स पाकिस्तान में ज़्यादा सेल होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया. अगर आप ओवरऑल क्वांटिटी के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की क्वांटिटी डबल होगी बिकॉज इंडिया ट्वाइस एज पाकिस्तान. बट वाई आई एम सेइंग क्योंकि डेंसिटी के ऊपर देखा जाता है कि दैट पर 100 पीपल या पर 1000 पीपल कितना आईफोन सेल हुए, कितना वो है. सो that's a short kind of thinking I am sharing with you guys. Thinking नहीं है, that's a real research in 2018. तो अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि सिंगल इक्वेशन कभी भी इस सिनेरियो को फिट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे फिर डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग फाइनेंशियल एनालिसिस हियर. क्यों हम यहाँ पे डिसीजन ट्रीज इस्तेमाल करते हैं. देन वी आर गोइंग टू हैव सिस्टम कंट्रोल, एस्ट्रोनॉमी. I don't know how it supports astronomy, but yeah, it does. Even NASA mentioned that even in the past scenarios, when they were having 32 kilobytes of RAM, 16 kilobytes of RAM, they were using decision trees for multiple simulation predictions. कि rocket अगर हमारा आसमान में जाएगा, so how it gonna perform. So they were using decision trees for that. And manufacturing and production quality control, semiconductor manufacturing, and many things, medicine, diagnosis, physics. So अच्छी खासी applications रही recent trees की, but as soon as random forest entered the market, it nearly just ruined the decision tree classification when it comes to large volume of data. बस सबके दोनों की अपनी अपनी हुकूमत है. decision tree यूँ कह रहे हैं कि decision tree एक छोटा सा कबीला संभाल रहा है और random forest पूरी रियासत संभाल रही है. Alright, so let's just start with the classification in Python. First, let me import all these libraries. So we are importing pandas for data input output. We are importing NumPy for arrays and arithmetic operation sum if you need it. All right. So वैसे NumPy array आज भी हम यूज़ नहीं कर रहे, उसकी वजह बताऊंगा मैं आप लोगों को सबसे एंड के अंदर. Okay, we are using import matplotlib.pyplot for visualization. Okay, from sklearn.3 we are using recently classifier. So this is the function of the day which we are importing here. This is the model.
डिसेंट्री मॉडल। तो ये आज का हमारा मॉडल है जिसको आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। देन फ्रॉम एसक्यूएल एंड मॉडल सिलेक्शन वी आर इंपोर्टिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, जो कि हम हमेशा की तरह निकाल रहे होते हैं। और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का खैर यहाँ कोई काम नहीं है, ये मेरे ख्याल से मैंने के नंबर से कॉपी करा है, इसलिए इसमें ऐसा आ रहा है, वी डोंट नीड इट। ऑलराइट, so then again from sklearn.metrics import accuracy score, confusion matrix, ROC curve। ROC curve मैं आज पढ़ाने के बहुत मूड में था, बट आई एम नॉट गोना टीच दैट एज वेल, क्योंकि ROC curve कल के लिए है, क्योंकि कल हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट में कुछ खास सीखने को होगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट दे आर द सेम थिंग्स। तो कल रैंडम फॉरेस्ट के अंदर मैं 3 न्यू चीज़ें सिखाऊंगा जो कि थोड़ी सी ड्राई भी हो सकती है, तो दैट्स व्हाई आई एम वार्निंग यू। तो सारी चीज़ें हम कल ही सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। एंड या फ्रॉम स्किल एंड इंपोर्ट प्रोसेसिंग, ये सारी पहले की हैं, ज़रूरत हो ना हो मैं सारी इंपोर्ट कर देता हूँ, अगर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो डोंट नीड टू इम्पोर्ट इट अगेन, क्योंकि मैं कौन सा भी प्रोडक्शन में जा रहा हूँ, प्रोडक्शन में आपको एक चीज़ ख्याल से इंपोर्ट करनी पड़ती है। ऑलराइट, सो नाउ वी आर इंपोर्टिंग द डेटा सेट। ये डेटा सेट कहाँ से आया मेरे पास, तो अगर आपको ये जानना है डेटा सेट मेरे पास कहाँ से आया, तो अगर पहले हम इस डेटा सेट को व्यू कर लें थोड़ा, अगर इस डेटा सेट को हम थोड़ा एक्सप्लोर करें। ओके, हियर इज अ डेटा सेट। ऑलराइट, फिर जो आज का जो डेटा सेट है हमारे पास वो बेसिकली इंडियंस वुमेन का है, जो और जिनके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं और वो कितनी एज में, ये हम प्रिडिक्शन ये दे रहे हैं कि इफ़ दे गोइंग टू बी डायबिटिक पेशेंट और नॉट अकॉर्डिंग टू सम मेडिकल और हेल्थ फैक्टर्स। तो आज हम इस डेटा के साथ खेलेंगे और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो आसान सा डेटा सेट है, लेकिन इसके अंदर जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स नहीं है। तो अगर आप लोगों मेरी कैगल की फ़ाइल खोलें, तो उस कैगल की फ़ाइल के अंदर ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। आई हैव सेंड दैट कैगल यूआरएल टू ऑल व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। तो वहाँ से आप खोल लें, अगर नहीं खोलना वहाँ से तो यहाँ से भी अगर हम देख लें। ऑलराइट, पीमा इंडियंस, ऑलराइट डायरेक्ट आ गया। आई थिंक इट्स अ वेरी फेमस। तो यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करेंगे और डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमारा डेटा सेट आ गया। सो आई लाइक द डेटा सेट, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसको, बट आई लाइक दिस। यहाँ हमारे पास कॉलम नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि भाई पहला जो है एक मिनट, यहाँ पे पहले का नाम इन्होंने प्रेगनेंसीज दिया हुआ है, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट के मोमेंट कितने टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। एंड देन हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, मतलब प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन 2 आवर्स इन एन ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ग्लूकोज तो आप लोगों को पता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना है, ये उसको मेजर कर रहा है, जो हम बेसिकली डायबिटीज मशीन से भी या जो ग्लूकोज मीटर से भी चेक कर रहे होते हैं। देन वी आर गोइंग टू हैव ब्लड प्रेशर। Right, so no. Then we are going to have diagnostic blood. Okay, we are having blood pressure. Then we are having skin. Then we are having okay, what, insulin. Then we are going to have body mass index. Then we are going to have diabetes pedigree function. Then we are going to have age. Then we are going to have task variables. अभी काफ़ी complicated names थे, that is why I just rename these guys और अपना नाम दिया इनको मैंने। let me see कि please why my mouse is not working, don't do this at this time to me। alright, तो यहाँ पे अगर हम देखें बहुत बड़ा डेटा सेट है ये वाकई, और अरे बस भी कर दो। तो here you can see यहाँ हमारे पास सबके डिफरेंट डिफरेंट वो आ रहे हैं हमारे पास नेम्स, दैट इज वाई कि मैंने इनको डिफरेंट नाम देने का सोचा। मैं इन्हीं ऑर्डर से मैंने सिंपली इसको डाउनलोड किया, या ड्राइव पे डाला, यहाँ पे ड्राइव से इंपोर्ट किया, और मैंने इनको डिफरेंट नेम देने का सोचा। जहाँ प्रेग लिखा होता है या प्रेगनेंसीज लिखा होता है वहाँ पे नाम डाल दिया प्रेग्नेंट, सिंपल सिंपल नेम डाल दिए। ठीक है, मैंने प्लाज्मा की जगह ग्लूकोज डाल दिया है। देन आई हैव एंटर प्रेस की जगह प्रेशर की जगह मैंने बीपी डाल दिया है, स्किन डाल दिया है, इंसुलिन डाल दिया है, बीएमआई डाल दिया है, पीडीडी डाल दिए, एज डाल दिए, एंड देन आई हैव इनपुट लेबल इंस्टेड ऑफ क्लास। अब प्रेग्नेंट क्या है, दैट हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने डिटेल्स मेंशन कर रखी है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट।
ग्लूकोज में क्या है, प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन are 2 hours in an oral glucose tolerance test. Then we are going to have diastolic blood pressure. अच्छा, स्किन ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस, ये मुझे नहीं पता कि डेटा सेट के अंदर क्यों है, दैट इज व्हाई आई हैवंट इंक्लूडेड फॉर ट्रेनिंग, बिकॉज मैंने नेट के ऊपर इसके ऊपर स्टडी करी दैट इज देयर इज एनी रेलिवेंट पर्पस के स्किन की थिकनेस से डायबिटीज को फर्क पड़े, बिकॉज वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज हैविंग डायबिटीज and my some other relatives are also having some diabetes, very far relatives, and both are having different type of skin thickness. So how it can measure that it gonna have तो मैंने इसको स्किन को आज इसलिए डाटा के ना ट्रेन नहीं करा, बाकी जितने भी मुझे फीचर्स लगे मुझे इंपॉर्टेंट लगे और मैंने उनको ट्रेन किया, बिकॉज बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज अ मैटर व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज। इंसुलिन लेवल तो ऑफ कोर्स की बात है कि सीरम सीरम आपके साथ कितना है, इंसुलिन का आपकी बॉडी में कितना डेवलप हो रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप डायबिटीज़ की बात करते हो। ग्लूकोज और इंसुलिन तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज़। Then BMI, what is BMI? BMI is basically body mass index, which is in weight in kg divided by height in meter square. तो बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली है रेशो। आप अपना भी बॉडी मास इंडेक्स मालूम कर सकते हो, और अगर आपको नहीं मालूम बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स। सो लेट मी शो यू, आप भी अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हियर। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ मैट्रिक में है और यहाँ पे सॉरी फॉर दैट यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड के अंदर है, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, मैं अपनी फॉर एग्जांपल यहाँ हाइट डाल देता हूँ, लेट मी एंटर इट, नॉट सो हाई, सो 5'11" and my weight is 80 kgs, yeah, too much, and then I'm going to compute. Alright, so ये पाउंड में डालना है मुझे, so okay, so I guess 170 होगा अराउंड, so 23.7 मेरा BMI बन रहा है, which is actually a normal weight। तो ये आपके नॉर्मल वेट में आ रहा है, ओवर वेट भी नहीं आ रहा और BCT के अंदर नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो ये BMI है, बॉडी मास इंडेक्स रेशियो, और अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड्स डेवलप हुआ हुआ है, तो सबका यहाँ पे BMI निकला हुआ है अलग से, वेट और हमारे पास हाइट नहीं है, तो अगर हमारे पास अलग से वेट और हाइट होती तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अलग से वेट और हाइट ही दिएगा, लेकिन जब चूंकि हमारे पास BMI है, I don't know why, so we're gonna use BMI for our future reference in while training. Then we are going to have P degree. So P degree is specified diabetes P degree function. ये एक डायबिटीज की डिग्री होती है, लाइक फॉर एग्जांपल माय आंट इज हैविंग सेकंड P degree लेवल डायबिटीज, सो क्या कुछ ये है मुझे भी नहीं मालूम, बट these are code related to medical science, और ये बेसिकली डायबिटीज रिलेटेड है कि कितने जल्दी उनको डायबिटीज पॉसिबल है या कितनी जल्दी इनके सर्कमस्टांस है कि इनको डायबिटीज हो जाएगी। सो देयर आर सम डिग्री अकॉर्डिंग टू सम मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इनको अगर आप इनको पढ़ने जाए तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग डायबिटीज मॉडल। आज मैं मेडिकल का डाटा से लेकर आया हूँ कि आपको मालूम हो कि कितनी सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं मालूम होंगी, और जब आप क्लाइंट के साथ काम करने जाओगे ना तो आपको इस बारे में पढ़ना पड़ेगा अबाउट मेडिकल थिंग्स, चाहे फिर वो कुछ भी हो। मेरा दिल किया तो कल भी ऐसे ही करेंगे, अदरवाइज कल कुछ और अच्छा करेंगे। Alright, so in age we are going to have age of all patients. यहाँ पे हमारे पास age years में, thanks God. Then we are going to have label, which is actually the class label. 1 जो है tested positive for diabetes, 0 जो है tested negative for diabetes। जिनको 1 था वो डायबिटीज के पेशेंट बन गए हैं, और जो जिनको 0 था वो डायबिटीज के पेशेंट नहीं बने। तो नाउ ऑन दीज ट्रेनिंग फीचर्स वी गोइंग टू ट्रेनर मॉडल। तो यहाँ पे मैंने कॉलम नेम के अंदर उसी मतलब यूँ कह लें कि उसी ऑर्डर के मुताबिक मैंने सारे कॉलम्स ले लें, प्रेग्नेंट, ग्लूकोज, बीपी, स्किन, इंसुलिन, BMI, P डिग्री, एज, लेवल, सारे लेने पड़ेंगे, ताकि जब मैं डाटा को इम्पोर्ट करूँ तो मैं उनको बता दूं कि भाई इनके जो हेडर नेम्स हैं उनकी जगह आप क्या रख दो, कॉलम नेम रख दो। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पीमा नाम ले रहे हैं डाटा सेट का, और यही नाम था डाटा सेट का, तो हम पीमा ही नाम ले रहे हैं। एंड हेयर वी आर इम्पोर्टिंग दिस डाटा सेट बाय पासिंग दिस डायरेक्टरी, एंड नॉट जस्ट दिस के यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेंशनिंग हेडर इज इक्वल टू नन। अब नाउ व्हाट इज हेडर इज इक्वल टू नन डूइंग। अब क्या होता है, जब हमारे पास डाटा था दूसरा ही डाटा था, अगर हम गिटअप में देखें
तो इस डेटा सेट को जो पहली वैल्यूज थी जो कि हेडिंग्स नहीं थी, तो वो क्या कर रहा था, उसको एज अ हेडिंग सपोज कर रहा था। दैट इज व्हाई वी हैव टू पास के ये जो इसमें कोई हेडिंग ही नहीं है। तो ये जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज है ना, जिसको गिटअप भी हेडिंग सपोज कर रहा है, तो उसको पाइथन जो है हेडिंग सपोज नहीं करेगा, बिकॉज दैट्स आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल वैल्यू। सो यहाँ पे हमने इसकी पास कर दिया हेडर इज इक्वल टू नन। फिर हमने यहाँ पास कर दिया नेम्स इज इक्वल टू कॉलम नेम। क्या कर रहे हैं कि अब हम अपने कॉलम नेम जो हमने यहाँ लिस्ट में दिए हुए थे उसी ऑर्डर से जिस यहाँ पे कॉलम नेम आ जाएंगे। और ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से जो मर्जी दे दिया, नहीं। अगर आपने जो मर्जी एक्स्ट्रा नेम दे दिए, लाइक 8 नेम चाहिए तो उसको आपने 9 दे दो तो वो एरर जनरेट कर देगा। आप उसको 7 नेम, उसको 8 नेम चाहिए था, 7 तभी वो एरर जनरेट कर देगा। सो जस्ट वी आर पासिंग द राइट नेम्स इन द सेम ऑर्डर, और वो हम यहाँ पे पास कर देंगे इनटू नेम्स एज अ कॉलम नेम। और जस्ट इफ यू रन दिस, so now we are viewing this data set, first 8 rows of this data set from 0 to 7। हमारे पास प्रेगनेंसी भी आ गई है, नंबर प्रेगनेंसी भी आ गई है, ग्लूकोज लेवल भी आ गया है, ब्लड प्रेशर भी आ गया है, स्किन भी आ गया है, इंसुलिन भी आ गई है, बीएमआई भी आ गई है, पीडिग्री भी आ गई है, एज भी आ गया और लेवल भी आ गया। तो यू हैव ऑलरेडी सीन कितना इजी हो गया, ये करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यूजुअली डेटा सेट आपको इस तरह के मिल सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे एक कोरिलेशन रेट है जो कि मैंने ऐसी प्रिंट कर दिया था। कोरिलेशन क्या कर रहा होता है, ये हर उसका कोरिलेशन निकाल रहा होता है कि किसका कोरिलेशन कितना ज़्यादा है। तो अगर आप डिटेल में देखें फॉर एग्जांपल, तो जो प्रेग्नेंट का प्रेग्नेंट होगा ना उसका 1 होगा, जो ग्लूकोज का ग्लूकोज होगा उसका भी 1 होगा, जो बीपी का बीपी होगा उसका 1 होगा। बिकॉज वो दोनों की दोनों में कंपेयर करेगा तो जाहिर सी बात है 100% ही रिजल्ट आ रहा है। तो ये सिंपली जस्ट बताने के लिए करा है। इससे अभी तक तो आपको खास फायदा नहीं उठा सकते उसको समझ के, लेकिन इसका आगे जाके बहुत फायदा होगा। सो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग वन मोर फंक्शन ऑफ पांडास कॉर, जिससे आप डायरेक्टली ईच फंक्शन टू डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट फीचर आप उसके कोरिलेशन मालूम कर सकते हैं। ऑलराइट, जस्ट स्किप दिस थिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा सेट को हमेशा की तरीके से स्प्लिट करेंगे और वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट अ फीचर एंड स्प्लिट डेटा इनटू टेस्ट एंड ट्रेन। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे स्किन डालने पे ना मेरी एक्यूरेसी बहुत गिर रही थी, और मुझे उससे भी अंदाजा हो गया था कि स्किन इज नॉट अ वेरिएंट फीचर या वैलिड फीचर फॉर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिमूव्ड स्किन फ्रॉम माय डेटा सेट। और मैंने तमाम वो जो यूजफुल डेटा सेट थे स्किन के अलावा तमाम ही लेबल्स को मैंने निकाल दिया, स्किन को मैंने निकाल दिया, क्योंकि लेबल्स हमारे पास टारगेट फीचर्स होंगे और बाकी ये जो हमारे पास बाकी के फीचर्स हैं हमारे पास क्या होंगे, यूजफुल फीचर्स होंगे। तो नाउ वी आर इंपोर्टिंग ऑल दीज फीचर्स हियर, प्रेगनेंसी, इंसुलिन, पीएमआई, एज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर एंड पीडिग्री सब ले लिया हमने, कुछ छोड़ा नहीं है। बस हमने क्या निकाला, स्किन निकाला है। और यहाँ पे हमने क्या किया, फीचर कॉलम की लिस्ट बनाने के बाद हमने आज के दिन फीचर टारगेट लेने की तरह लिख दिया एक्स इज इक्वल एक्स और वाई, एंड हेयर वी आर यूजिंग एक्स इज इक्वल टू पीमा फीचर कॉलम्स। यहाँ पे हमने लिस्ट डाल दी। आप चाहते तो डायरेक्ट इस लिस्ट को कॉपी करके भी डाल सकते थे, और वैसे आपका दिल करे तो यहाँ पे बिल्कुल लिस्ट आ रही है, एंड देन इट्स अज्यूमिंग कि हाँ मुझे सब यही कॉलम्स उठाने हैं अपने अंदर, तो इसके पास फिर वही डेटा सेट हम अपना आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा एक्स के अंदर। सेम वी आर डूइंग फॉर वाई, हम पूरे डेटा सेट के अंदर से सब लेबल का कॉलम जो है अब उसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, वाई के अंदर स्टोर करा रहे हैं। देन हेयर वी आर स्प्लिटिंग अ डेटा सेट। अगर हम उसको रन करके देखें सब चीज़ों को, तो ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर रन करने से पहले ही कि ये एक्स स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे पास भाई सब 576 डेटा सेट है। ओके, 576 डेटा सेट है, और एक्सेस में कितना हमारे पास 192 डेटा सेट है, मतलब ज़्यादा डेटा सेट भी नहीं है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स के अंदर, तो यहाँ हमारे पास टोटल सम आ रहा होगा विच इज 768 ऑफ डेटा सेट। तो टोटल हमारे पास 768 लाइन्स थी, जिसको हमने 75% 25% में स्प्लिट कर दिया है, एंड वी कैन सी दिस एज हियर एज वेल। अगर हम जस्ट एक्स को देखना चाहें, तो हमारे पास 0 से शुरू हुआ है और 767 पे ख़त्म हो रहा है तमाम उसके यूजफुल फीचर्स। एंड अगर हम देखना चाहें एक्स ट्रेन को, हमारे पास रैंडमली जनरेट हुआ है। ये दिखाना ज़रूरी क्यों था,
क्योंकि कल एक मैंने सवाल किया कि जो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फंक्शन से यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम लोग इमेज प्रोसेसिंग करते हैं तब हम लोगों ने रैंडम डाटा शफल नहीं किया था, उन्हें तो आपको बोली बहुत कॉम्प्लेक्स जाता। तो यहाँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रैंडमली डेटा अपने पास रिटर्न कर रहा होता है, एंड दैट्स ट्रू बिकॉज आपके पास पूरी पूरी एग्जाम्पल है। 183 आया, 460 आया, 21 आया, 50 आया, ऐसा क्यों करता है वो? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डाटा अरेंज ऑर्डर के अंदर, एज्यूम इट, अब डाटा का रिलेशनशिप कुछ यूं बन रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर यूं उसका ग्राफ बनता चला जाता है। अब क्या होगा, उसने यहाँ तक का ले लिया, वहां तक का रह गया, मसला हो गया ना। तभी ट्रेन टेस्ट बेड क्या करता है, रैंडमली जगह जगह से पॉइंट उठाता है एंड देन इट मेक्स अ ट्रेन एंड टेस्ट सेट। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सिनेरियो हो रहा है, और स्पेशली इन द सिनेरियो वेयर वी यूज रिसेंट ट्रीज, हमारे पास ग्राफ यूं आ रहा था, फिर यूं आ गया, फिर यूं आ रहा था, फिर यूं आ गया, मतलब देर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन दैट ग्राफ। तो वो हर तरह का टेस्ट लेगा ताकि वो हर तरह का जनरलाइज सोल्यूशन डेवलप कर सके। ऑल राइट, अगर आपको दिल कर रहा है तो एक्स टेस्ट भी दिखाई देते हैं आपको। बाकी वाई ट्रेन वाई टेस्ट आप खुद ही देख लिएगा, उसमें कौन सी कोई इतनी बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास अब 192 रोज है, और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट डाटा सेट्स होंगे जो हमारे पास एक्स ट्रेन के अंदर नहीं होंगे। हर उसमें से अगर आप देखें, हर सेंचुरी में से इसने एक न एक तो लास्ट भी उठा रखा होगा। All right, so now we're gonna train the model, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा पूछना चाहूँगा कि सबको is everything clear to you guys? Okay, someone asked that why is it so blur? Okay, so I don't know why it is blur. Is that clear now? वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। Okay, अगर आप क्लियर नहीं है तो बता दें, so कुछ अंडरस्टैंडिंग से रह गया, so let me know so I can teach it again. ओके, प्लीज वी अटैच कोलैब लिंक। मैंने कोलैब का लिंक शेयर नहीं करा है, सॉरी, मैंने कोलैब का लिंक शेयर नहीं करा, मैंने जस्ट कैगल का लिंक शेयर किया। दिस इज़ माय पर्सनल नोटबुक, और तो इसको मैंने क्या किया, गिटहब पे डाल दिया। यू कैन गो एंड एक्सेस फ्रॉम हेयर, सिंपली एम हुज़ैफा डेव और डिस्टेंट ट्रीज। मैं एक दफ़ा दोबारा शेयर कर देता हूँ, मैंने डिस्कॉर्ड पे शेयर कर रखा है, यू कैन एक्सेस। आई हैव आल्सो शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, और लेट मी स्विच टू टीम्स, और दोबारा से अनाउंसमेंट मेड कर देता हूँ। ओके, सो आई हैव डन। ओके, अयान सिंह वापस रिपीट कर दें। सो कैन यू प्लीज बी मोर स्पेसिफिक कि क्या चीज़ दोबारा रिपीट कर दूँ? एंड एनी फर्दर क्वेश्चन अपार्ट देन, सो आई एम ऑलवेज रेडी टू क्लियर इट। Any further question? Okay, PMA dot correlation, could you explain? Yeah, okay, Ashish, I'm going to explain that. All right, so moving upward, ये मैंने आपको कहा था कि ये एक नया फंक्शन है जो कि मैंने भी कभी तक खास यूज़ नहीं करा, लेकिन ये कर क्या रहा होता है, बेसिकली आपको बता रहा होता है कि किस फंक्शन का कि दूसरे फंक्शन से क्या कोरिलेशन बनता है या क्या रेशो बनता है। ये आपको 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज में बताएगा, और अगर बिल्कुल नेगेटिव रिलेशनशिप बन रहा होगा तो आपके पास वैल्यूज नेगेटिव में आ रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी आर हैविंग प्रेग्नेंट टू फ्रेग्रेंट रेशो, यहाँ पर 1 आएगा बिकॉज जब प्रेग्नेंट की वैल्यू प्रेग्नेंट से जाएंगी वो सेम है ना, तो वो ऑब्वियस बात है उनका सेम रिलेशनशिप बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रेग्नेंट का और ग्लूकोज के साथ, तो उसमें क्या रिलेशनशिप बन रहा है हम वहाँ पे भी देख सकते हैं, भाई 0.12 बन रहा है। लेकिन जब हम बात करें बीपी में, तब भी ये हो रहा है, स्किन में जाके हमारे पास कम हो गया, नेगेटिव हो रहा है। तो ये इस डेटा सेट पे खास इतना कोई वैलिड नहीं है, ये जस्ट आई वाज टीचिंग यू द अदर फंक्शन ऑफ पांडास के कोरिलेशन इस तरह ही मालूम की जा सकती है, ये रिग्रेशन में ज़्यादा यूजफुल होता है। मुझे याद नहीं था कि ये भी एक होता है, मुझे भी आज देखा, आज मेरी नज़रों से गुजरा तो मैंने कहा आज बता दूंगा। ये भी फंक्शन होता है, डीप लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है ये कोरिलेशन का ये फंक्शन। सो दैट इज़ व्हाई आई वाज टीचिंग यू, क्योंकि आगे आने वाली चंद वर्कशॉप्स के बाद हम डीप लर्निंग में शिफ्ट कर जाएंगे। दैट विल बी दी माइल्ड डीप लर्निंग, मतलब हार्ड डीप लर्निंग नहीं होगी, लेकिन वो डीप लर्निंग इतनी होगी कि आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बिल्डअप कर देगा, ताकि अगर अगले महीने आपको सेल्फ ड्राइविंग कार भी बिल्ड करनी पड़े तो आपको उसके लिए बेसिक इंट्यूशंस तो एटलीस्ट। ऑलराइट, सो एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? ओके, स्प्लिट डेटा वाला रिपीट कर दें।
All right, no worries. So here we are just splitting the data set, जो कि हम हमेशा करते रहे. हम split data set को इसलिए repeat करते हैं. Maybe you are new. तो मैं बता देता हूँ हम किससे split कर रहे होते हैं. For example, model है. You are the model. वही example repeat कर रहा हूँ. या I am the model. मैंने मुझे एक sheet दी गई और उसमें true false थे. तकरीबन कोई 22 false थे. और मुझे कहा कि भाई इनको याद कर लो, बाद में आपसे पूछूंगा मैं. मेरे पास 22 फॉल्स थे, मैं 22 फॉल्स मैंने याद कर ली. मैंने क्या किया, मैंने उन पर रट्टा लगा दिया. अब रट्टे से मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई मॉडल ओवरफिट तो नहीं हो गया, मॉडल बायस तो नहीं हो गया. इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज आता है हमारे पास. तो उस सिनेरियो को डील करने के लिए हम फिर क्या कर रहे होते हैं, डेटा सेट को स्प्लिट कर रहे होते हैं. क्यों कर रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रट्टा लगाया हुआ है, तो जब मेरे पास एग्जामिनेशन का टाइम होगा तो मेरे पास वही अगर सवाल आ गए उसी डेटा सेट के अंदर से, उन्हीं सवालों में से मैं फटाफट ठक 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 ट्रू फॉल्स करके एंड आई एम गोना पास माय एग्जामिनेशन और एक्यूरेसी रेट अच्छी आ जाएगी. बट व्हाट विल हैपन इफ आई वाज गिवन अ डेटा सेट जो कि मुझे पहले कभी मिला ही ना हो. लाइक 20 क्वेश्चंस थे और उसके अंदर से 14 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस मुझे दिखा दिए गए, भाई इनको समझ के पढ़ लो. कल जो क्वेश्चंस आएंगे या तो इन्हीं में से कस्टमाइज्ड होकर आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड अलग क्वेश्चंस आएंगे. मतलब जो रेस्ट ऑफ द 6 रह गए, आपने समझना है इनको और फिर पढ़ना है. तो जब मैं उनको समझूंगा, तो जब और मैं उनको जब प्रिडिक्ट करूंगा दी एक्स दी प्रिडिक्टेड वैल्यूज या फिर टेस्ट सेट जो है मेरा, तो एग्जाम देते वक्त मैं मुझे पता चल जाएगा, वो बनता है मुझे इवेल्युएट कर सकता है कि इसे समझ के पढ़ा है या रट्टा लगा के पढ़ा है. रट्टा लगा के पढ़ा होगा तो मैं वहाँ पे फिर जाऊंगा. समझ से पढ़ा है मतलब मॉडल बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है, तो मतलब मैं 100% एक्यूरेसी दे रहा हूँ, 100% 90% जो भी एक्यूरेसी रेट मेरा बन रहा है. लेकिन रट्टा लगाया हुआ है, मैं मेमोराइज कर चुका हूँ डेटा पॉइंट्स को, बायस हो चुका हूँ, तो मैं फेल हो जाऊंगा और वहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मैं हमारा मॉडल सही काम नहीं कर रहा. उस सिनेरियो के लिए हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं. क्या करते हैं, हमने फीचर्स अलग ले लिए हैं और वाई कॉलम अलग ले लिए. फीचर्स वो होंगे जो हम इनपुट देंगे प्रेडिक्शन के लिए, और वाई कॉलम वो हैं जो प्रिडिक्ट करना है हमने. यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा का पूरा डेटा सेट डाल दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फंक्शन के अंदर. ये हमारे पास फंक्शन है और इसमें डाल दिया एक्स और वाई. ये एक ट्रूपल रिटर्न करता है, उसका ऑर्डर हमेशा यही होता है कि पहले एक्स का ट्रेन करेगा, फिर एक्स का टेस्ट करेगा, फिर वाई का ट्रेन करेगा और फिर वाई का टेस्ट करेगा. इस तरीके से डाटा हमारे पास स्प्लिट भी हो रहा है इनटू टेस्ट एंड ट्रेन सेट. So in this regard, if you are having, or up till now, if you are having any sort of confusion regarding recent fees or anything else, you can ask me. All right, so it's clear. Okay. Oh, where my screen just go? Okay. So now we'll go down and we just train our model. यहाँ पे हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे. आज मैंने अपने मॉडल का नाम मॉडल नहीं लिया क्योंकि ज़्यादातर लोग CLF नाम लेते हैं, तो मैंने फिर CLF ही ले लिया. ये खैर ऐसी मजाक कर रहा हूँ. आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, आप चाहे अपना नाम लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने CLF लिख दिया, मॉडल लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया एंड डिस्कॉर्ड पर्सनल मुझे नहीं, किसी और को मैसेज किया था उसने. ही इज़ ऑल्सो मशीन लर्निंग इंजीनियर फुरकान अली एंड सेइंग कि why we write CLF instead of model here when we have to write model here. So for instance, I also laugh when because he was sitting just beside me. और मैंने बोला भाई CLF इसको मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा that what is CLF and what is model. कुछ भी नहीं है भाई, सब एक वेरिएबल है, आप वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो और असल मॉडल तो ये है. ठीक हो गया. और इस मॉडल के अंदर हम जब इस हमारे पास मॉडल आ जाएगा तो हमारी मर्जी होती है कि हम इसको इस तरह लिख लें. एक ही बात है, हम जब डॉट फिट कर रहे होते हैं ना, तो वो उसके अंदर ही ट्रेन हो रहा होता है, उसके अंदर ही वैल्यूज आ रही होती है हमारे पास. और अगर हम इस तरह कर लें तब भी यही बात है. चलें अब इसी तरह ही कर रहे हैं जिस तरह हम रोज करते आ रहे हैं. सो प्रिडिक्ट द रिस्पॉन्स फॉर टेस्ट डेटा सेट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस दे रहे हैं. क्या करेंगे, जब मॉडल हमारे यहाँ पे ट्रेन हो चुका होगा ना, तो इस मॉडल का फंक्शन होता है डॉट प्रिडिक्ट का. अब इसमें हम वही वाला काम कर रहे हैं जो मैंने पहले बताया कि अब मैं आपको वो सवाल दे रहा हूँ जो कभी आपने देखे ही नहीं. मतलब एक्स टेस्ट सेट, मैं टेस्टिंग सेट दे रहा हूँ, उसकी बिना पे वो अपनी वाई वैल्यूज प्रिडिक्ट करेगा और फिर हम उन वाई वैल्यूज प्रिडिक्ट करके कंपेयर करेंगे आगे जाके रियल वाई वैल्यूज से कि भाई सही प्रिडिक्ट करी थी या नहीं करी थी. तो यहाँ पे जी ये काम हो रहा है एंड वी गोना रन दिस. इफ आई एम रनिंग टू फास्ट, सो प्लीज लेट मी नो.
because actually I'm having a huge severe headache. तो मुझे मालूम नहीं हो रहा if I'm on my time or not. Okay, so यहाँ पे भाई हमारे पास मॉडल ट्रेन हो गया है. CLF is equal to decision tree classifier and then we are having CLF dot fit x train comma y train. यहाँ पे हमारे पास predictions y fit के अंदर स्टोर हो चुकी हैं. Now we will evaluate this model. Evaluate कैसे होता है? हमारे पास एक फंक्शन है accuracy score का, and in this function we're gonna pass y test and y predict. Y test हमारे पास क्या है? जो हमारे पास actual y values है. Y predict हमारे पास क्या है? जो हमारे पास predicted y values है. इन दोनों का डिफरेंस मालूम करने से ही तो मालूम होगा कि एक्यूरेसी स्कोर क्या बन रहा है. फॉर एग्जांपल जो एक्यूरेसी 1 आ रही है तो उसकी भी y predict आ रही है और सब में ऐसा होता है. सो इट मीन्स कि हमारे पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है. लेकिन अगर तो ऐसा है कि भाई रियल सेट 0 था और उसने प्रेडिक्ट 1 कर दिया तो वहाँ पे जाके हमारी एक्यूरेसी गिरेगी. दैट इज व्हाई वी आर पासिंग दीज टू वैल्यूज. यहाँ पे कभी एक्स वाई मत पास कर देगा एंड देन वी गोना फाइंड एक्यूरेसी स्कोर. ऑलराइट, सो अभी हमारी एक्यूरेसी आ रही है 0.671875 which is pretty poor accuracy rate. 0.67 इस हेल्थ सिनेरियो के अंदर दिस इज प्रीटी पुअर. अब इसका एक नया सिनेरियो ये होता है दैट वी कैन ट्राई टू फिक्स दिस प्रॉब्लम विद सपोर्ट वेक्टर एनालिसिस. नहीं तो रैंडम फॉरेस्ट इज आफ्टर द किंग. लेकिन हमेशा याद रखिएगा आपको तमाम के तमाम मॉडल ट्राई करने होते हैं, चाहे प्रॉब्लम कोई सी भी आ जाए आपके पास. अपना 30 माह खान दिमाग ही लगाते हैं, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग की क्यों ना हो. दे ऑलवेज रन एवरी टाइप ऑफ मॉडल. देखते हैं कि किसके अंदर ज़्यादा प्रिडिक्शन आ रही है, देन दे इमेजिन कि व्हाई दिस मॉडल इज गेटिंग मोर एक्यूरेसी रेट. तो यहाँ पे हमारे पास 0.67 एक्यूरेसी आ रही है और इसको यहाँ पे हमने विजुलाइज भी कर लिया है सीबॉर्न के थ्रू. सीबॉर्न इंपोर्ट करना उसके पहले मैटप्लॉटलिब पांडास और नंपा इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे हमने sns.heatmap ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने क्या पास करना होता है? मैट्रिक्स पास करना होता है. अब जब हम मैट्रिक्स पास कर रहे हैं तो मैट्रिक्स पास वही हो रहा है जो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास रिटर्न कर रहा होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. ये हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स पास हो रहा है. तो यहाँ पे हमें सिंपली वो 2x2 का एरे मतलब मैट्रिक्स जो है पास कर दिया, एनोटेशन 2 कर दिया कि हमारे पास ये एनोटेशन आ जाए, और सी मैप कर दिया मैंने आज ग्रीन. रोज हम ब्लू कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा ग्रीन ट्राई करते हैं, और हमारे पास ये ग्रीन कलर का उसी का इवेल्युएशन मैट्रिक्स डेवलप हो गया. यहाँ तक कोई सवाल मॉडल ट्रेनिंग के अंदर, इवेल्युएशन के अंदर, हीट मैप के अंदर कोई भी सवाल हो सो यू कैन आस्क मी राइट अवे. Let me see the Q&A as well. Any question regarding this, you can just ask me right away. On this, then we're gonna see something more as well in decision trees. All right. So you guys are not having questions so far. तो पहले डिसीजन ट्री का मॉडल देख लेते हैं. आज हम यूजुअली हर मॉडल को इतना अच्छा विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ट्री की बात ही क्या होती है. रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है जिसे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, सिंपल एक ग्राफ बन जाता है. लेकिन डिसीजन ट्री को क्लासीफाई विजुलाइज करने का या रैंडम फॉरेस्ट की ट्रीज को विजुलाइज करने का अपना ही एक मज़ा है. तो आज अभी हम उसको विजुलाइज करते हैं. अच्छा, एक आयान सेइंग दैट इवैल्यूएशन वापस बता दें. ऑल राइट, सो लेट मी टेल यू इवैल्यूएशन अगेन. उसके बाद फिर चलेंगे डिसीजन ट्रीज पे. देखें सिंपल एक इसको इस तरह रखें. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो सकता है यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे कन्फ्यूजन हो रही हो, मैंने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके थे. मैं ज़रा यहाँ पे एक इमेज खोल लूँ नेट के ऊपर और उस पर आपको समझाता हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की. ओके, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. And now, all right, this is the best image I can have, and I'm going to open this image in the new tab. Bye this tab. All right, होता क्या है, for example, if you are having 100 positive data set and 70 negative data set, मतलब हमारे पास टोटल 170 वैल्यूज हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 100 वो हैं जो पॉजिटिव थी और 70 वो थी हमारे पास जो नेगेटिव थी. अब इसमें क्या होगा? इसमें सिंपली ये होगा कि वही कंपेयर करेगा पॉजिटिव से और नेगेटिव की प्रिडिक्शन से. मॉडल ने पॉजिटिव कितनों का प्रिडिक्ट करा है? 1 हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज रिमेंबर. हमारे पास 170 फॉर 100 पॉजिटिव थे और उनमें से कितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए, तो वहाँ पे नंबर आ जाएगा कि हाँ भाई ये
थे भी पॉजिटिव और मॉडल ने भी पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया। यहाँ पे कितने थे जो पॉजिटिव, लेकिन मॉडल ने उनको नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिए, तो उनको हम बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव्स। क्यों हम उसको ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये टू पॉजिटिव थे, वही वाकई में पॉजिटिव थे ये। दिस इज नोन एज फॉल्स नेगेटिव। भाई ये जो नेगेटिव प्रिडिक्ट हुए ये गलत नेगेटिव प्रिडिक्ट हुए हैं, ये पॉजिटिव ही थे हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एक्चुअली नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हमारे पास थे लेकिन इसने गलत पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए हैं, ये फॉल्स पॉजिटिव कहलाएंगे। देन यू आर हैविंग टू नेगेटिव्स, मतलब भाई नेगेटिव थे भी और इसने उनको नेगेटिव ही प्रिडिक्ट किया है। सो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जो हम रेशियो यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। तो मतलब हमारे पास इन दो फॉल्स वैल्यूज में जितनी कम वैल्यूज आएंगी उतना अच्छी एक्यूरेसी हमारी बनेगी एज कम्पेयर टू दीज वैल्यूज इन टू। जब प्रॉपर्टी टू टू वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो वैल्यू आ रही हो मैट्रिक्स के अंदर, सो इट मीन्स कि हमारी 100% एक्यूरेसी है। और 100% एक्यूरेसी कैसे आती है? मैं एक सिंपल सा मॉडल बना के ना आज आप लोगों को शेयर करूंगा रात में, लेटर एंड नाइट। सो वो आप सुबह उठ के कभी भी देखिएगा कि 100% एक्यूरेसी किस तरह दिखती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर भी, और 1.0 देख के कितनी खुशी होती है। लेकिन वो रियल वर्ल्ड डेटा सेट नहीं होगा, वो आर्टिफिशियली जनरेटेड डेटा सेट होगा। उसकी वजह ये है कि रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर कभी भी एक्यूरेसी इतनी अच्छी आती नहीं यूजुअली, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती हैं। ऑलराइट, सो वी आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ एक्यूरेसी, जो कि अब इस एक्यूरेसी को अगर हम समझें, इस इवेल्युएशन को समझें, तो हमारे पास यहाँ पे 92 पॉजिटिव थे और यहाँ पे हमारे पास 39 टू नेगेटिव थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 34 जो थे वो हमारे पास वो थे जो कि फॉल्स पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे हमारे पास वो हैं जो फॉल्स, हमारा राइट, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास वो होंगे जो फॉल्स, यार लेट मी सी, मैं खुद भूल गया, या सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास सही बता रहा था मैं, यहाँ फॉल्स पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे हमारे पास फॉल्स नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यूज आ रही है। अब 29 34 यहाँ पे अगर होते ना 1000 2000, अगर डेटा सेट ही हमारा इतना बड़ा होता तो हमारे लिए 34 29 दूर दूर तक कोई मायने भी नहीं रखता। लेकिन जब हमारे पास वैल्यू 90 आ रही है भाई, उसका आधा तो यही लेगा 34 29। सो वट इट मीन्स कि हमारा मॉडल इतना अच्छा ट्रेन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, या हम क्या कर सकते हैं भाई, डिसीजन ट्रीज नहीं बना सकता इतना अच्छा मॉडल। इसी इवेल्यूएशन मैट्रिक्स को हम विजुलाइज करते हैं इन अ हीट मैप। सीबल की लाइब्रेरी का फंक्शन है, मेथड है हीट मैप, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली एक मैट्रिक्स पास करना होता है हमें। तो ये हमें बेसिकली जो फंक्शन है, इसमें जब हम वायर टेस्ट और वायर प्रिंट की वैल्यू डालते हैं तो हमें मैट्रिक्स रिटर्न करता है। तो सेम हमने पूरा का पूरा वही कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया है, एन और 2 कर दिया ताकि हमारे पास ये एनोटेशन आ जाए, और सी मैप करते हैं ग्रीन तक हमारे पास ग्रीन कलर आ जाए। आपकी मर्जी, आप ग्रीन पसंद नहीं आ रहा है अगर तो कुछ भी कर सकते हैं। आई हैव नेवर ट्राइड येलो, लेट्स सी इफ येलोज विल वर्क और नॉट। इट गिविंग मी एरो, सॉरी इट गिविंग मी एरर कि येलो नहीं है इसके पास। सो क्या ब्लैक्स है? ब्लैक्स तो नहीं होना चाहिए, ग्रे होगा, अगर होगा तो, या ग्रे है, ये तो होना चाहिए या। सो ये ब्लैक वही ग्रे स्केल में आ गया। सो यू कैन विजुलाइज लाइक दिस एज वेल। बाकी मजीद कलर्स आप लोग मालूम कर सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नेट से। ब्लूज जो हम रोज कर रहे थे, रेड्स हो गया, रेड्स तो ऑफ कोर्स होगा, मैंने बहुत दफ़ा किया है। So this is the basic visualization of the entire confusion matrix, or you can say error matrix, जो आप यूजुअली क्लाइंट को दिखाते वक्त यूज़ करते हो कि भाई ये है, इतने ट्रू पॉजिटिव हैं, इतने फॉल्स नेगेटिव हैं, और फिर एक्यूरेसी भी बता देते हो भाई उसको। ऑलराइट, सो यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। लेट मी, ऑलराइट, all right. Okay, someone has said, can we try to normalize the scale data and check it if increase model accuracy? So you have given the spoiler. Yes, तो आखिर में आज आपका यही होमवर्क था कि भाई प्री प्रोसेसिंग कर लेना। यहाँ पे मैंने प्री प्रोसेसिंग पहले की हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्री प्रोसेसिंग मैंने की हुई थी। अगर आपने दूसरी नोटबुक अगर गिटहब से निकालें तो वहाँ पड़ी हुई नोटबुक ऑलरेडी, वहाँ प्री प्रोसेसिंग हुई हुई, तभी यहाँ पे ये प्री प्रोसेसिंग लिखा हुआ था। लेकिन मैंने आज प्री प्रोसेसिंग नहीं करवाई क्योंकि हम कल करेंगे इंशाल्लाह। कल रैंडम फॉरेस्ट में करेंगे और उसका बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप खुद से करना चाहें तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइस एज वेल, और आई विल बी सो हैप्पी टू सी दैट
प्री प्रोसेसिंग टेक्निक अप्लाई करें और हो सकता है उससे एक्यूरेसी अच्छी हो जाए. All right, so sir, I can't access the Python notebook from your Git repo. यार पता नहीं क्यों नहीं आपको एक्सेस हो रहा, लेकिन यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ. कभी कभी आ जाता है समथिंग वेंट रॉन्ग और नहीं. अब तो ये डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन दे रहा है. वाओ मैन, पहले डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी देता था ये, अब तो डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन दे रहा है. आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली. तो यहाँ से आप आराम से उठा लें यार. अगर नहीं एक्सेस हो रहा था ना, यहाँ से कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है. थोड़ा वेट कर लें, 2-3 दफ़ा ट्राई करेंगे, आ जाएगा, टेंशन नहीं ले. मेरे साथ अपनी कॉस्ट्यूम में हो जाता है ये. ऑलराइट, ओके. ओके, सही सही, बहुत बेहतरीन बात. कि अच्छा, किस हो सकता है आप लोगों ने देख लिया हो कि मेरी पहले जो एक्यूरेसी थी वो 0.65 थी. उसकी वजह ये, और अब 0.67 आ गई है. पॉइंट का डिफरेंस आता रहता है. उसकी वजह क्या होती है कि उस बंदे ने जवाब भी खुद ही लिख दिया था जिससे मुझे से क्वेश्चन किए. आई विल गिव हिम शॉर्ट डेटर. और वो ये वजह होती है उसकी, सब ये क्या होता है कि जब डेटा को ये स्प्लिट कर रहा होता है ना, रैंडमली स्प्लिट करता है. कभी डेटा किसी और से किसी स्प्लिट हो जाता है, कभी डेटा किसी और से किसी स्प्लिट हो जाता है. तो कभी ज़्यादा एक्यूरेसी बन जाती है, कभी कम एक्यूरेसी बन जाती है. तो 0.2 0.3 का फर्क आता रहता है. लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता. इफ़ वी रन द इंटायर नोटबुक अगेन बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड F9 और फॉर मैकबुक इट इज कमांड, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी बहुत एक्यूरेसी ज़रूर चेंज हुई होगी. Wow, wow, man. So now we are having 0.75 accuracy just by different training set. क्योंकि जब जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना, तो ये इसको डिफरेंट रैंडम अरेंजमेंट के अंदर डेटा को डिवाइड करता है. तो ये तो मेरी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया. लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ वी रीरन दिस इंटायर नोटबुक. सो थैंक्स फॉर टेलिंग दिस. और ये है ऐसा कि रैंडम ऑर्डर की वजह से ऐसा डेटा के अंदर एक्यूरेसी में फ़र्क आता है. अब वापस से एक्यूरेसी गिर चुकी है. सो नो वरीज, हम जस्ट अपना आगे काम करेंगे. Is it possible that we run decent tree of model over two different machines on same data set and gives different accuracy? Yes, of course, possible है. भाई उसकी रीज़न ही होती है कि स्पेसिफिकेशन नहीं होती. ये तो खुद सोच के कर रहा होता है, पॉइंट का वहाँ पे एरर आता है. एंड देन आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है. सो आशीष वाज द पर्सन हु highlight this thing. Thanks Ashish for mentioning this. You are very brilliant student here. So जब भी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के थ्रू हम डेटा स्प्लिट करते हैं तो रैंडमली स्प्लिट हो रहा होता है, और कभी कभी रैंडम स्प्लिटिंग में से हमारी एक्यूरेसी ऊपर जो थ्रेशोल्ड्स डिफरेंट होते रहते हैं, वो वेरिएट करते रहते हैं. सो इट्स नॉट अ बिग डील. और डिफरेंट मशीन पे तो एब्सोल्युटली कोई ना कोई चेंज आएगा, कोई ना कोई मार्जिनल एरर भी प्रोड्यूस हो सकता है. All right, so this 11e plus 02 means 110. Don't worry about this. अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं विजुअलाइजिंग डिसीजन ट्रीज. ये जो यहाँ पे हमने पूरा कोड लिखा हुआ है, इस पर कुछ नहीं हो रहा. बस यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे एक डिसीजन ट्री प्रिंट हो रहा है जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा है. अब इसको ज़रा समझ लेते हैं कि ये कर क्या रहा है. यहाँ पे हमने फ्रॉम sklearn.tree से इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट ग्राफिक्स. ये ग्राफिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज यही असल है जो हमें हेल्प कर रहा है पूरे मॉडल को ट्रीज में विजुलाइज करने की. scikit-learn का अपना एक फंक्शन है. देन वी आर हैविंग sklearn.externals.6 import string io. ये एक अदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि हमारे पास डॉट डेटा नोड का डेटा जो है किस ट्री के अंदर या किस लीफ के अंदर क्या वैल्यू जा रही है वो हमें मालूम करने में मदद दे रहा है. इट्स जस्ट इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग द इंटायर डॉट डेटा. और फिर यहाँ पर हम आ जाए फ्रॉम ipython डॉट डिस्प्ले इम्पोर्ट इमेज. हम इसको यूज़ करेंगे इमेज को खोलने के लिए. जैसे हम टेक्स्ट फाइल खोल रहे हैं यूजिंग pandas, तो यहाँ पे ipython डॉट डिस्प्ले की एक लाइब्रेरी है. एंड वी गोना इम्पोर्ट द इमेज फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग इमेज को यहाँ पे ओपन कर रहे होंगे. एंड देन वी आर हैविंग दिस py.plus. हमें मैटप्लॉटलिब यूज़ नहीं कर रहे बेसिकली, यहाँ पे हम py.plus यूज़ कर रहे हैं. जिस कहना सेम थिंग, लेकिन वो आसानी से जो डॉट डाटा की हमारे पास वैल्यूज आती हैं स्ट्रिंग आयो से, जो इसकी वैल्यूज आएंगी और जो इसकी वैल्यूज आएंगी,
मतलब कैरेक्टर्स आएंगे और ट्रीज आएंगे, उनको मर्ज करके वो एक ग्राफ प्लॉट कर रहा होता है। फिर उसको हम इमेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और फिर हम उसको विजुलाइज कर रहे होते हैं, तो आप उसको समझ भी लेते हैं। So here we have taken string io, और string io की वैल्यूज किस पे स्टोर हो रही है, डॉट डेटा वेरिएबल में स्टोर हो रही है। देन वी आर टेकिंग अनदर फंक्शन एक्सपोर्ट ग्राफ विज। यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, पहले मॉडल पास कर दोगे। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है डिसीजन ट्री क्लासीफायर, बिकॉज वो क्लासीफायर है। देन मैंने क्या लिखा, आउट फाइल बाई डॉट डेटा। डॉट डेटा के अंदर जितना भी हमारा डाटा होगा, स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा होगा, जो भी होगा वो डॉट डेटा के फॉर्मेट में हमारे पास स्टोर हो रहा होगा, डायरेक्ट इमेज फॉर्म में स्टोर नहीं होता। ये डॉट डेटा इज लाइक अ रॉ वैल्यू फॉर दिस, you can say which is written in string for the entire model। तो हमारे पास ये आउट फाइल जो हमने फॉर्मेट दिया, डॉट डेटा दिया है, हमने लिखा फील्ड इज इक्वल टू, ताकि उसके अंदर कलर्स थोड़े आ जाएं, थोड़े नीचे बना हुआ है, थोड़े कलर्स आ जाएं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज की डिपेंडिंग अकॉर्डिंग कलर्स आ जाएं। फिर हमने इसको बोला फिर राउंडेड इज इक्वल टू, ताकि थोड़ा सा जो स्क्वायर्स हैं वो और अच्छे लगे हमें, थोड़े कर्व कर्व बने। क्या आपकी मर्जी है कि इसमें कोई खास से फर्क नहीं पड़ रहा है डायग्राम पे। देन यू कैन यूज स्पेशल कैरेक्टर्स इक्वल टू, जितने भी अगर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो वो भी इसमें आ जाएं, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमसे। देन वी आर मेंशनिंग हेयर फीचर नेम्स इज इक्वल टू फीचर कॉलम्स, कॉलम इज इक्वल टू नेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको, क्योंकि वहाँ पर डेटा सेट के अंदर फीचर्स नहीं थे, तो और अगर हों भी तो भी आपको यहाँ पे अलग से पास करना पड़ता है। आपको तमाम कॉलम नेम फीचर नेम से आप पास करोगे फीचर कॉलम्स, जो आपके फीचर कॉलम्स हैं। एंड इन क्लास यू गोना पास दीज वैल्यूज 0 और 1। हमारे पास भाई दो ही वैल्यू हैं, एक 0 है और एक 1 है। और हमारे फीचर में कौन सी वैल्यू है, फीचर नेम में फीचर कॉलम हमारे पास वैल्यू जो हमने पर एक लिस्ट बनाई थी विथ which is having number of multiple number of you can say column names, multiple names of columns। so उल्टा बोल दिया है, you can say names of multiple columns, yeah, sorry for that। आज बहुत ब्रांड्स मेक कर रहा हूँ मैं। ग्राफ इज इक्वल टू पायलट प्लस डॉट ग्राफ फ्रॉम डॉट डाटा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ग्राफ में क्या शो करा रहे हैं, ग्राफ शो करा रहे हैं। मैंने जैसे भी आपको बताया कि पायलट प्लस के अंदर हम ग्राफ शो कराते हैं, और पायलट प्लस का एक मेथड है ग्राफ फ्रॉम डॉट डाटा। या वही जो रॉ डाटा हमारे पास डॉट डाटा की फॉर्मेट में जनरेट हुआ, जो रॉ डाटा हमारे पास जनरेट हुआ डॉट डाटा की फॉर्मेट के अंदर, जिसमें कुछ स्ट्रिंग में वैल्यूज थी, अब उससे हम वैल्यूज को स्टोर करा रहे, किस रिटर्न करा रहे किसमें, अपने इसके पैरामीटर के अंदर, किसके फंक्शन में, ग्राफ फ्रॉम डॉट डाटा के अंदर। जब इसके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी, देन इट गोना कन्वर्ट दैट वैल्यूज इनटू अ ग्राफ। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ डॉट डाटा डॉट गेट वैल्यू, मतलब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर, ये उनको कुछ यूजफुल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन वी गोना रिटर्न इन द सेम विद इन द सेम फंक्शन। फिर ये उन वैल्यूज को ग्राफ पे कन्वर्ट कर रहा होगा और वो ग्राफ यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। देन व्हाट वी विल डू ग्राफ डॉट राइट अंडरस्कोर png। अगर हम यहाँ पे ये ना भी लिखे ना, लाइक ये तो कोई मसला ही नहीं है, हमारी png बन चुकी है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, हमारी पीएनजी बन चुकी है, ट्रू दिखा रहा है क्योंकि वाकई पीएनजी बन गई है, रुकी नहीं है। अब कहाँ बन गई भाई, तो भाई आपकी जहाँ जिस एनवायरनमेंट में आपका चल रहा होता है ना, ये वहाँ बनी होती है, और ये रही आपकी पीएनजी। अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, करो यार करो, डाउनलोड तो बिल्कुल कर सकते हैं आप यहाँ से। और 1 मिनट लगा उसको, डाउनलोड भी हो गई। अच्छा, अभी मेरे पास विजुलाइज जो हो रही है ना, ये उसमें नहीं हो रही। सो लेट मी शेयर माई इंटायर स्क्रीन। ओके ओके, अब मैं आपको पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो यू कैन हैव दिस फ्रॉम हियर। ऑलराइट, तो आप लोगों के पास अब मेरी पूरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। एंड नाउ जस्ट, ये मेरे पास डाउनलोड हुई थी, तो उसको जब मैंने खोला तो मेरे पास ये फोटोज की ऐप में खुल गई। सो आई कैन हैव दिस फाइल एज वेल। जूम हो रही है, यस इट इज़ बीइंग जूम, और कितनी हाई क्वालिटी के अंदर, अगर आप देखें कितनी हाई क्वालिटी के अंदर है, कितनी हाई क्वालिटी में। तो यहाँ पे आपके पास मालूम हो रहा है कि इस किस वैल्यूज के मुताबिक इसे डिवाइड किया है। ये सारे बेसिकली इफ एल्स हैं जो इसे जनरेट किए हैं, लेकिन आप सर्दी में लगा लेते हैं ना, तो आपको लेस करने में
जिंदगी गुजर चुकी होती है, आप लोग एनालाइज नहीं कर पाते। तो ये सारा ही खुद से ही काम कर रहा है। बस हम यहाँ पे ये फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं ना इधर, और राइट, पूरे डेस्कटॉप शेयर करते के साथ ही वो बोल रहा है कि इट इज कोडिंग सम बैड क्वालिटी। तो मैं यहाँ से स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करूँगा, जस्ट नोटबुक शेयर करूँगा। जब नोटबुक शेयर करी थी ना तो इतना नहीं बोल रहा होता। ऑलराइट, सो इट्स बीइंग शेयर टू यू गाइस। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल मतलब एक तरीके से इसको विजुलाइज करा दिया है। अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब ये इमेज डेटा जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप क्लाइंट को उसकी रेजोल्यूशन कंप्रेस करके कि उसके वैल्यूज दिख भी ना रहा हो तो भेज भी देंगे ना, तो वो हार्ड कोड भी करने जाएगा तब भी वो एक्यूरेट आपके पास नहीं आने वाले। ऑलराइट, सो जस्ट गेट बैक टू दिस थिंग जहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब यहाँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से हमारे पास एक्यूरेसी डिफरेंट हो रही थी। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसकी रैंडम सीट चेंज कर दें, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है उसका और एक प्रोस भी है। प्रोस क्या है कि आप क्या करते हो, आपका ड्रॉबैक ये है कि आपने स्पेसिफिक रैंडम रख दिया है और अब उसी के मुताबिक आपकी वो आ रही है, मतलब एक्यूरेसी आ रही है, तब भी थोड़ा बहुत फर्क आता है। वेरी ऑनेस्ट, डिफरेंट मशीन में थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। तो फर्क आता है रैंडम सीट रखने पे भी। लेकिन अगर आप रैंडम सीट रख रहे हो ना तो फिर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको लेके चलते रहो, फिर देखो किस पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आई। जहाँ सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही हो उस मॉडल को उठा लो, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर सिनेरियो में होता है कि ऐसा हो रहा हो। यहाँ पे डिसीजन ट्री फेल हो रहा है बेसिकली, ट्रेन टेस्ट सेट फेल नहीं हो रहा। डिसीजन ट्री खुद इस काबिल नहीं हो पा रहा कि वो एक रैंडम डेटा के ऊपर सही से ट्रेन हो चुके हैं। तो हम कल कर पढ़ेंगे रैंडम फॉरेस्ट। आप चाहें तो खुद से भी सेल्फ लर्निंग करके रैंडम फॉरेस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो हम कल पढ़ेंगे। और कल हम रैंडम फॉरेस्ट के साथ पढ़ेंगे 3 न्यू थिंग्स, क्योंकि क्लासिफिकेशन कल हमने करना है बाय। तो बाय करते करते कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, जिस तरह हमने रिग्रेशन में किया था। जिस तरीके से हमने उस दिन इमेज प्रोसेसिंग की किसमें, सपोर्ट वेक्टर मशीन में, तो उस दिन काफ़ी स्टूडेंट्स को के सर पे से गुजर रहा था। फिर कल लाइव बेस की तो बहुत लोगों के सर पे से गुजर गया और आई वॉज वेरी यार इतना भी मुश्किल नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन आज मैंने इसलिए ईजी रखा है टू मेक यू गाइस रिलैक्स। कल थोड़ा सा फिर मुश्किल होगा। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, मशीन लर्निंग के तो कुछ आसान तो नहीं कर सकते। Alright, so guys, if you are having any sort of question, so it's 9:06. You can ask me right away. Yeah, thank you for two people, Ashish and Usman, who are saying the problem must be from participant side. I am not facing any type of blurriness. So ये फिर आपके इंटरनेट को इशू होगा। इन लोगों को मेरी तरफ से कोई ब्लरनेस शो नहीं हो रही। So it's good to see that. Okay. All right. Getting back to the questions. सर काइंडली रिपीट द लास्ट क्वेश्चन अगेन। कोई बात नहीं सर, आपके लिए जान हाजिर है। ओके, सो फ्रॉम sklearn.tree import export graphics, यहाँ पे हमने तमाम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं है तो भी बता दें मुझे। अब स्ट्रिंग आयो क्या करता है, जो जो क्या करता है बस याद रखें, हमने उसको वहाँ से इंपोर्ट किया। स्ट्रिंग आयो क्या करता है कि स्ट्रिंग आयो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल है, उस मॉडल के अंदर जितने भी हमारे पास रफ या रॉ डेटा वैल्यूज है ना, जो पैकेज की वैल्यूज हमारे पास मॉडल की, उसको जनरेट कर रहा होता है इन रॉ फाइल। जिसका फॉर्मेट क्या होता है, डॉट डेटा। डॉट डेटा आपने कभी शायद आगे जाके पढ़े, व्हेन यू गोइंग टू बी व्हेन यू विल बी जनरेटिंग सम मॉडल पैकेजेस, वहाँ पे बहुत काम आ रहा होगा। लेकिन ये डॉट डेटा बेसिकली मॉडल की अंदरूनी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ट्री बना है नीचे, इस ट्री के अंदर आपके पास ये लीव्स कहलाते हैं, जितने भी लीफ है ना, और ये कहलाती है जो लाइंस हैं, ये नोड्स कहलाती हैं। अब ये था हमारा बेसिक नोड, यहाँ पे तमाम वैल्यूज आई, ये डिवाइड कर गया, फिर डिवाइड कर गया, फिर डिवाइड कर गया। अब हर लीफ के अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी शो हो रही है। वो वैल्यूज कैसे मालूम होंगी, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन है, जो उस मॉडल की वैल्यूज को लेकर आ रहा है इन रॉ फॉर्म। बस हमें उसको इंपोर्ट कराना था, करा के छोड़ दिया। फिर पहले हम बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ होगा तो हम उसके ऊपर वैल्यूज लेकर आएंगे ना। तो यहाँ पे हम
लेकर आए वैल्यूज ग्राफ एंड देन वी आर मेंशनिंग हियर CLF हमारा मॉडल है। आउट फाइल क्या है हमारे पास, जो सोर्स फाइल हमारे पास मौजूद है वो है डॉट डाटा, जो उसका फॉर्मेट है। देन वी आर हैविंग फील्ड इज इक्वल टू, ताकि हमारे पास कुछ इंटेंसिटी के मुताबिक, कुछ वेरिएशन के मुताबिक कुछ कलर्स आ जाए। देन वी आर मेंशनिंग राउंडेड इज इक्वल टू, ताकि हमारे पास जितने भी सर्कल स्क्वायर्स बने वो थोड़े से राउंड हो जाए, सो इट गोना लुक सम गोइंग टू गिव अस सम न्यू लुक। तो ये सिर्फ आपकी शशकें हैं, आपकी मर्जी, आप लिखें ना लिखें। देन यू आर एंटरिंग है स्पेशल कैरेक्टर 2, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है किसी स्पेसिफिक कॉलम नेम के अंदर, कुछ भी है, कहीं पे भी आ रहा है, so it can make it possible for it to be printed here. And then we are having feature names and column name. यहाँ पे हम तमाम फीचर नेम पास कराते हैं। हमारे फीचर नेम हमने ऑलरेडी ऊपर लिए हुए थे इस लिस्ट के अंदर, हमने यहाँ सारे फीचर नेम पास करा दिए। हमने कॉलम नेम लिस्ट में नहीं लिए हुए थे, तो हमने कॉलम नेम की अलग से लिस्ट तैयार कर दी 0 और 1 की, और हमने कॉलम नेम भी पास करा दिए। सो देखा कितना आसान था ये काम, कोई खास मुश्किल नहीं था। देन वी आर गोइंग टू हैव ग्राफ इज इक्वल टू पायलट प्लस डॉट ग्राफ फ्रॉम डॉट डाटा। अब यहाँ से डॉट डाटा से जो हम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, डॉट डाटा जो रॉ वैल्यूज थी, हम उसके कुछ प्रॉपर एप्रोप्रिएट वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं, जो हमारे पास कहाँ पर आए, हमारे मॉडल के अंदर आए। तो वैल्यूज जनरेट होकर हमारे पास इस फंक्शन में आ रही हैं। फिर मॉडल की वैल्यूज हमारे पास किसमें आ रही हैं, इस फंक्शन में आ रही है, ग्राफ फ्रॉम डॉट डाटा, जो कि एक मेथड है पायलट प्लस का। ये क्या करेगा, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर स्टोर करा देगा ग्राफ के अंदर। अब हमारे पास ग्राफ के अंदर बेसिकली ग्राफ मौजूद है, लेकिन हम उसको विजुलाइज करने के लिए या तो प्लॉट डॉट शो करते हैं, लेकिन ये मैटप्लॉट का काम नहीं हो रहा, सेकंड का काम हो रहा है या पायलट प्लस का काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ यहाँ पे शो कराने का कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ डॉट राइट PNG, ये एक डायबिटीज डॉट PNG की एक फाइल तैयार कर देगा। कुछ भी नहीं करेगा, क्या करेगा, डायबिटीज डॉट PNG की फाइल तैयार कर देगा। आपकी मर्जी है, यहाँ पे क्रिएट PNG लिख दें, राइट PNG लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे हम चाहे तो इमेज के अंदर डायरेक्ट लिख दें वही डायबिटीज PNG का URL, तब भी इमेज वो रिटर्न करा के पूरी इमेज दिखा देगी। या फिर डायरेक्ट यही फंक्शन कॉपी करके यहाँ डाल दें, क्रिएट PNG। जब आप फर्स्ट टाइम डालते हो ना राइट PNG, तो उसके लिए आप तब डालते हैं जब आपके पास आपको URL पास करना होता है। क्रिएट PNG का मतलब है कि उसके पास ऑलरेडी URL राइट हुआ हुआ है, अब आपको जब चाहिए ना आप PNG क्रिएट कर सकते हो। So here we are just creating PNG of that graph, graph कह रहे हैं या tree कह रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास tree आ गया। So any further relevant question regarding decision trees today? So you can ask me. All right. Okay. Feature name is equal to feature column। मैं दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखें, फीचर कॉलम के अंदर हम फीचर नेम के अंदर हम फीचर कॉलम्स दे रहे हैं, ताकि उसको पता चल रहा है कि हमारे पास कॉलम कौन कौन से थे। उसको थोड़ी पता चल रहा है, हमारे पास डेटा थोड़ी पास कर रहा है, वो तो सब मॉडल से उठा रहा है। तो यहाँ पे हम क्लास नेम के अंदर पास करें 0 1 जो प्रिडिक्ट हुई है। अब क्लास नेम्स लाइक 0 1 ये वैल्यूज हैं, यूनिक वैल्यूज हैं उनकी। अगर हम ऊपर जाएं तो where were we? Yeah, here. So this is the entire data set, और यहाँ पे हमारे पास लेबल के अंदर जो क्लास नेम्स थे वो 0 1 ही आ रहे थे, लेकिन फीचर के नेम कौन से थे, ये होगा क्लास नेम। उसने ये नहीं बोला कि टारगेट फंक्शन कौन सा, उसने बोला क्लास के यूनिक नेम कौन सा। मैंने बोला भाई 0 और 1 है। फीचर नेम कौन सा, हमारा प्रेग्नेंट भी है, ग्लूकोज भी है, BP भी है, स्किन भी है, इंसुलिन भी है, BMI भी है, डिग्री भी है, एज भी है। हमें ये सारे कॉलम पास करने होंगे, और सारे कॉलम हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिए हुए हैं। सारे नहीं, सॉरी, हमें स्किन इसमें से निकालना है। तो अगर आप यहाँ देखें, हम यहाँ पे हमने एक लिस्ट तैयार की थी जिसमें स्किन ऑलरेडी इंक्लूड नहीं था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो लिस्ट तैयार की हुई थी किसके अंदर स्टोर कराई हुई थी, फीचर अंडर कॉलम कॉलम्स के अंदर। तो सेम यही लिस्ट हम जो ले आए, नीचे ले आए, और यहाँ पे हमने किसके पास करा दिए, फीचर नेम्स के अंदर। तो अब इसके पास भाई कॉलम नेम भी जनरेट होगा। सो आज का होमवर्क अभी चलो बताता हूँ इसके बाद कि क्या है, और कल की एक क्वेरी भी थी, वो भी डिस्कस करनी है, लेकिन पहले ये वर्कशॉप से फारिग हो जाए। सो गाइस, एनी फर्दर क्वेश्चन? Why was the model accuracy decreased when the okay, यही डिस्कस करना है भी इसके बाद। उसके अलावा अगर रिसेंट से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बता दें, और फिर उसके बाद होमवर्क भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। होमवर्क इज ओके, होमवर्क इज नॉट मस्ट, होमवर्क इज फॉर यू, फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। आपकी मर्जी, आप लोग करें नहीं करें।
ओके गाइस, सो अच्छा यहाँ पे एक बंदा कह रहा है कि भाई डिसेंट ट्री ग्राफ समझा दें। तो भाई समझा इतना देते हैं, इसको छोड़ें तो बहुत बड़ा है। ऊपर चलते हैं, और ऊपर कहाँ चलेंगे हम, जहाँ पे हमने एक नॉर्मल ग्राफ लिया हुआ है। तो भाई देखें, एक हमारे पास रूट नोड होती है जहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज इनपुट हो रही होती हैं। फिर वो उन तमाम वैल्यूज को देखते हुए डाटा को स्प्लिट करता है कि भाई आधा डाटा यहाँ चला जाए, आधा डाटा यहाँ चला जाए। ठीक हो गया। इस पूरे को आप फिर बोलते हो सब ट्री या ब्रांच कह लो। ये पहली हमारे पास नोड से ब्रांच निकल गया, ये हमारे पास ब्रांच आई, ये हमारे पास है डिसीजन नोड। अब ये डिसीजन नोड क्या है हमारे पास कि भाई या तो इसके ट्रू होगा आंसर या इसका आंसर फॉल्स होगा। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल नोड, जो कि उसके आगे कुछ और नाम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिसीजन नोड में से एक टर्मिनल नोड निकल रहा है, मतलब या तो ये वैल्यू प्रिडिक्ट कर देगा, अगर प्रिडिक्ट नहीं करेगा तो अदरवाइज एल्स ये। अगर एल्स ये तो फिर इसके बाद शायद कोई और डिसीजन उसके पास पड़ा हो। अब इसके बाद दो टर्मिनल नोड आ रहे हैं, तो ये इस तरीके से चल रहा होता है। अगर हम यहाँ नीचे देखें, तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल ये रूट नोट थी, नज़र तो नहीं आ रही होगी आप लोगों को क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रही, तो आपको क्या आएगी। ये एक रूट नोट थी, और उससे यहाँ पे बाद एक डिसीजन नोट यहाँ निकल गया, एक डिसीजन नोट यहाँ निकल गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिसीजन नोट निकला, उससे चलते चले गए, और ये हमारे पास जो कहना रह गया, ये एक फाइनल डिसीजन था जो कि एक टर्मिनल कहलाएगा। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस नाउ? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछने प्लीज, डोंट नेवर हेजिटेट इन आस्किंग एनीथिंग। जो ट्री में वैल्यूज हैं उसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए वैल्यूज इट्स लाइक इफ एल्स, सिंपल इज दैट कि इफ भाई अगर मैंने आपको बताया ना, जैसे कि पहले वो जा रहा होगा कहीं पे, तीन वैल्यूज को देख रहा होगा कि अगर ये ज़्यादा रेंज का हो तो उसको इधर स्प्लिट कर देगा, मतलब भाई ये तुम संभालो, अगर वैल्यूज ज़्यादा रेंज का हो तो उसको यहाँ संभालो। तो ये वो सिनेरियो चल रहा होता है यहाँ पे, उसके अलावा कोई खास ही चल रहा होता। अगर लेट मी ट्राई टू ओपन द इमेज हेयर, मुझे इस गूगल क्रोम पे इमेज खोलने दें, एंड इफ लेट मी सी इफ इट कैन बी ओपनेबल। ओके, हाउ टू कॉपी पाथ ऑफ दिस फाइल। ऑलराइट, डोंट वरी, जस्ट वेट अ मिनट, मैं ज़रा भी आप लोगों को लेट मी सी। अगर गूगल क्रोम नहीं है तो नहीं कर रहा। मैं तो उसने ओपन ही कर दी। आई डोंट नो व्हाई। ओहो, इतने सारे इश्यूज एट द सेम टाइम, एक इसको खोलने के चक्कर में कितने सारे इश्यूज हो जाते हैं। ऑल राइट, तो अभी मैंने पूरी स्क्रीन शेयर कर दी है, जो कि यूजुअली मैं करना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं डायबिटीज़ खोलूँ, क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये तो मेरी टीम को ही शेयर करके बैठी है। दैट इज़ व्हाट आई हेट अबाउट दिस टीम थिंग। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इवेंट जूम पे होंगे, आई हैव टू परचेज दैट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट कॉस्ट $300 पर मंथ, सो इट्स या एक्सपेंसिव। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह के इवेंट जूम पे ही होंगे। ऑल राइट, सो अगर हम जाएं वापस इसके ट्री के ऊपर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, या ओके मैं डोंट टेक, ये जो है ना मुझे मैकबुक पे शिफ्ट करना पड़ेगा ना। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यूज आई, अब उसने हमारे पास कंडीशन रख दी। नो व्हाट इज हैपनिंग मैन। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं लाइक ग्लूकोज। अब कुछ वैल्यूज आई हैं उसके पास। अब व्हाट इज दीज वैल्यूज, मतलब क्या है ये चीज़ है, उसके पास वैल्यूज आई लाइक ग्लूकोज की वैल्यू। अगर उसने बोला भाई अगर ग्लूकोज 127.5 से कम हो ना, तो ट्रू इधर चला जाए और फॉल्स इधर चला जाए, मतलब अगर कम है तो इधर चले जाए, फॉल्स है तो कम चले जाए। कितने सैंपल डायरेक्ट उसके पास आए हैं, 576 सैंपल उसके पास ऐसे आए हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल फॉल्स में जो आया उसके पास 221 सैंपल आ गए, जिनका फिर उसने चेक किया कि भाई इनका बीएमआई कितना है। ठीक है ना, जीनी रेट और सैंपल रेट हम कल डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।
या थोड़ी देर में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये डिफरेंट देयर आर सम कॉरिलेशन फीचर्स। अभी क्लास 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्लास 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये क्लास 0 रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ पे क्लास 0 रिप्रेजेंट हो रही है, 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये कुछ डिफरेंट वैल्यूज के मुताबिक भी पहले उसे चेक किया ग्लूकोज कितना था, ग्लूकोज के हिस्सों को डिवाइड कर डेटा सेट को डिवाइड कर दिया है, फिर उसने बीएमआई के मुताबिक डेटा सेट को डिवाइड कर दिया है। अब उसने फिर ग्लूकोज के मुताबिक डेटा सेट को डिवाइड कर रहा है। मतलब ये इफेक्ट जनरेट कर रहा है, कोई स्पेसिफिक इक्वेशन डेवलप नहीं कर रहा। तो भाई यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है। अगर अब भी समझ नहीं आया तो प्लीज बता दें कि नहीं समझ में आया। देन वी गोइंग टू लर्न दिस, वी गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछना मुझे। Let me see how many attendees for today. All right, so there is almost 17% decrement as compared to usual. Why, people? Why? Am I teaching not right? Or maybe you guys are giving up in machine learning? कोई है? फिर उसके बाद हम लोग मजीद आगे चलते हैं। जिसका अच्छा हाँ, जिनी इम्प्योरिटी मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर उससे पहले कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो प्लीज़ शेयर दैट विद मी। All right, so you guys are not having any further questions. I have read it at last. Okay, now what is Gini impurity? Gini impurity is like basically which is mainly used in decision tree learning. Random forest में इसका इतना खास नहीं चल रहा होता. It's basically like it measures the impurity of categorical variables. हमारे पास 0 है और 1 है, तो जिनी इम्प्योरिटी बता रहा होता है कि हमारे पास कितनी डाटा के अंदर इम्प्योरिटी है। अगर 0.0 होता है ना, मतलब हमारे डाटा के अंदर इम्प्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं कि हमारे पास इंसानों को ले लेते हैं, लाइक मी एंड यू। मैं एग्जाम्पल एज्यूम कर लें कि दैट यू आर अ फीमेल एंड आई एम अ मेल। सो माई कलर इज नॉर्मल, माई कलर इज पेल एंड फॉर एग्जाम्पल जो कलर इज ब्राइट। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं। नाउ वी आर हैविंग टू डिफरेंट सेक्स एज वेल, आई एम अ मेल एंड आई एम अ फीमेल। अब क्लासीफाई मुझे क्या करना है, मैंने ट्रेन कराने का क्लासीफाई सिर्फ ये करना है कि लाइक इफ आई एम अ मेल और आई एम अ फीमेल, ठीक है ना। मशीन बता रही है कि भैया भाई ये मर्द है ये औरत है, बाय जस्ट लुकिंग एट योर फेस और योर स्टाइल। सो अब वो जो मेजॉरिटी ऑफ ईच ग्रुप आ रही होती है ना ट्रेन होने के लिए, तो उसके अंदर उसके बाद इनइक्वलिटी डेवलप हो जाती है, या पे इन इम्प्योरिटी डेवलप हो जाती है। तो उसको बोलते हैं जिनी रेट, जो कि एक वेरिएशन में आपके पास इंट्यूटिवली जो है एक एरर प्रोड्यूस हो जाए या इम्प्योरिटी प्रोड्यूस हो जाए। तो वो इम्प्योरिटी अगर हम यहाँ देखें इसके अंदर, अगर हम कहीं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू 0.278 आ रही है, कहीं पे 0.461 आ रही है। तो ये इम्प्योरिटी है इसके पास जो आ रही है, और दिस इम्प्योरिटी प्लेस ह्यूज रोल फॉर इट्स अंडरस्टैंडिंग। जबकि अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लास वैल्यूज तो यही है, 0 और 1 है। अब जी से तो पता चल रहा होता है उसको कि भाई मैं गलत जगह आया हूँ या सही जगह आया हूँ। अगर सही जगह नहीं आया होता ना, तो आगे जाके एक लीफ और तैयार कर देता है कि भाई इसको निकालो, उसको सफाई करो उसकी। अब अगर ये हम यहाँ पर देखें बिल्कुल ऊपर, तो इधर लेट मी जूम इट अ लिटिल बिग। यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू है जीनी की, 0.462, विच इज़ अ प्रीटी हाई वैल्यू। और अगर हम यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा, तो इधर आके हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी जीनी की, थोड़ी कम आएंगी। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास जीनी की 0.0 वैल्यू है। जब तक जीनी की वैल्यू 0.0 नहीं हो जाती, स्पेशली इन डिसीजन ट्री लर्निंग के अंदर, तब तक मजीद आगे चलता रहता है। मतलब क्या है कि हमारे पास इम्प्योरिटी के अंदर क्या हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में इम्प्योरिटी है। मतलब भाई इसको मजीद क्लासीफाई करो, उसको तुमने सही प्रिडिक्शन नहीं दी है अकॉर्डिंग टू द मॉडल। तो अगर आप देखें तो जितने भी टर्मिनल एंड हो रहे होंगे वो 0.0 से हो रहे होंगे। ये जूम आउट हो गया, यू कैन सी बाय लेटर दिस। तो यही सिनेरियो है, ये इम्प्योरिटी रेट, इसको जब तक ये 0.0 पे ना आ जाए हर टर्मिनल पे, तब तक इसको रिसेंटली रुकता नहीं है, बनता रहता है। सो दिस इज नोन एज इम्प्योरिटी रेट इन टेक्निकल टर्म्स एज वेल। ऑलराइट, सो any further questions, guys? Thanks for positive feedbacks, everyone. Let me see another thing as well कि आजकल हम लोग क्या पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे। Okay.
वही कल हमारा हम लोग ने पढ़ना है रैंडम फॉरेस्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन, फिर हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, एंड फिर के मींस क्लस्टरिंग है जो के नियरेस्ट नेबर से मिलता जुलता कंसेप्ट का है. तो या okay, someone has asked, Ayan has asked that is there any formula to calculate Gini impurity? Yeah, there is absolutely an formula जो कि probability से related है, and it's a bit difficult one. It's like J, G, two functions, like true false के functions होते हैं of some particular depending value, then उसका फिर summation होता है, and it's a very complicated value. अगर आप चाहें तो नेट पे सर्च करेंगे ना, any formula to calculate Gini impurity, formula आ जाएगा. समझ में आ जाए तो फिर मुझे भी बताइएगा. All right. So yeah, but yeah, there's always a formula. Formula के बिना कैसे calculate करेगा वो? So, but for ourselves, we don't need to calculate that thing जिसका कोई फायदा ही नहीं, तो time spend क्यों करें हम? All right, guys. So we're gonna end this workshop with the next 2 minutes. हम लोग already बहुत ज़्यादा over time हो गए हैं. So if you guys are having any sort of confusion, please ask them right now within next 30 seconds. Or I'm gonna leave with you with this second last, what you can say, classification, and then we are having random forest with some regressions, and then we're gonna have clustering, then we're gonna have then reinforcement learning. You can say taste of reinforcement learning, and then we're gonna have some sort of deep learning as well. All right. So everyone's saying no question. So all right. अपना ख्याल रखें. Goodbye.